हम्म। अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, नहीं पूरी नहीं, दुनिया में बच्चे वो भी खुश। सोशल में आ गए ना। हम्म। यहाँ वो सब उसमें आ गए, मतलब अपने अलावा सब उसी में आ गए। जी। इवन शुरुआत उन्होंने उसी से की थी, फैमिली। यस। जी। जी, तो यहाँ से भी कोई कंटिन्यू कौन करना चाहेंगे? मैं करूँ? जी। relationships relationships in 1938, two unrelated research teams in Boston, Massachusetts began tracking the lives of two very different groups of young men. The teams couldn't have known it at the time, but what they began in 1938 would become the most important study of human development on record and would change the way scientists think about human connection forever. कोई स्टडी हुई है 1938 में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, वो उसके बारे में टीम्स बनाई उन्होंने, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। वन रिसर्च टीम वाज लेड बाय हार्वर्ड फिजिशियन एर्ली बॉक, who wanted to escape the tendency in medicine to focus on the sick and instead study the attributes of the normal and successful. ये क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें से एक जो टीम थी, who wanted to escape the tendency in medicine to focus on the sick. इसमें ऐसा कह सकते हैं जैसे कि साइकोलॉजी हम्म। का अप्रोच भी ये था ना, पहले पैथोलॉजिकल अप्रोच था। साइकोलॉजी हम्म। क्या करती थी, बीमार लोगों को ठीक करना है, जो लोग डिसऑर्डर हो गया कुछ। तो हम्म। फिर बाकी लोगों ने कहा कि जो सही लोग हैं उनके लिए आप क्या करोगे, तो फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का जन्म हुआ। राइट। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि आप सिख लोगों को तो कर रहे हो, मेडिसिन से ट्रीट कर रहे हो, लेकिन व्हाट हम्म। अबाउट दोज हु आर नॉर्मल एंड ऑलरेडी सक्सेसफुल। हाँ। हाँ। तो कोचिंग का प्रोसेस एसेंशियली ऐसे लोगों के लिए है जो हाँ। ऑलरेडी सेटल्ड हैं, सक्सेसफुल हैं, नॉर्मल है। हाँ। मतलब जो ये अपने आयुर्वेदा में में भी आया है कि जो स्वस्थ है उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना। जी। Dr. Bock hoped that such a study could distill the recipe for general happiness, health, and success. A result he believed would be more powerful than anything he might achieve through a more traditional course of research. With the financial support of Boston-based department store magnate W.T. Grant, he got to work. The Grant study had an initial participant pool of 268 Harvard College undergraduate men. The other research team was led, अभी एक टीम की बात थी, अभी दूसरे टीम की बताएगा. The other research team was led by Sheldon Gulwek and his wife Eleanor, both on the faculty at Harvard Law School, and both of whom studied juvenile delinquency and criminal behavior. The Greeks focused their research on 456 boys from Boston's most troubled families and neighborhoods in an effort to determine the factors that contributed to delinquent behavior. तो दूसरी स्टडी ऐसे लोगों पे की गई जुवेनाइल थे जो, और जो उनके क्रिमिनल बिहेवियर को देख के, यानी वो स्टडी क्रिमिनल लोगों पे की गई, उनका बिहेवियर क्रिमिनल था जिनका। For over 30 years, the two longitudinal studies ran in parallel, but as something of a mirror image, one studying the lives of society's most privileged and the other studying the lives of some of the least privileged. मतलब ये दो ग्रुप उन्हें बनाए, मोस्ट प्रिविलेज्ड बोला और एक लिस्ट प्रिविलेज्ड. In 1972, George Valiant, a Harvard psychiatrist and researcher, took over as director of the grant study and made the historically important contribution of integrating the Gluex study into the research. The integration dramatically increased the breadth of the socioeconomic profile of the participants base and unlocked a range of potential study insights. किसी ने ज्वाइन किया 1972 में और दोबारा, और ये मतलब दोनों ही स्टडी को एक बार देखा, उनको इंटीग्रेट किया. Longitudinal studies typically experience funding challenges when
interest wanes, or original benefactors move on or die. But Dr. Valiant's leadership and storytelling enabled the study to thrive. Remarkably, as of the writing, the Grant study, now formally known as the Harvard Study of Adult Development, is still running over 85 years later. Researchers gather data from the participants every 2 years via a survey consisting of thousands of questions on life satisfaction, health, mood, and more. They also conduct a comprehensive set of physiological tests every 5 years. The study has tracked and measured the lives of combined 724 original male participants and more than 1,300 of their male and female descendants. It is widely considered to be the longest longitudinal study on the wealth and happiness of individual. जितने वो पुराने लोग थे फिर उनके और डिसेंडेंट्स आए तो अब तक की ये सबसे लंबी स्टडी है हार्वर्ड के पास. While the study findings are broad and far-reaching, its most important takeaway is simple. Relationships are quite literally everything. इस पूरी जो रिसर्च है उसका निचोड़ है कि सब कुछ हेल्दी रिलेशन के ऊपर है. अगर जिनके रिलेशंस अच्छे हैं वो लोग हैप्पी हैं, वो खुश हैं, rather than their status, monetary status or social status. Dr. Valiant put it bluntly, the key to healthy aging is relationships, relationships, relationships. 3 बार उसने इसको बोला है, यानी इस पे फोकस किया है, मतलब इसको इम्पैक्ट बनाने के लिए. The study has found that strong, healthy relationships are the best predictor of life satisfaction, far outpacing other hypothesized predictors such as social class, wealth, fame, IQ, and genetics. उन्होंने देखा कि जितने और पैरामीटर्स हैं, जेनेटिक्स है, आईक्यू है, फेम है, वेल्थ है, उन सब में उन्होंने सबसे नंबर 1 बताया हेल्थ रिलेशनशिप को. Perhaps even more important, the study found that relationship satisfaction had a direct positive impact on physical health. The study's current director, Robert Waldinger, highlighted the findings in a TED Talk that has been viewed more than 50 million times. It wasn't their cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. He said it was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. 50 की उम्र के आसपास जिनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, ये देखा गया कि वो 80 की उम्र में भी बहुत हेल्दी थे वो लोग. To reiterate that critical point, the single greatest predictor of physical health at age 80 was relationship satisfaction at age 50. On the flip side, loneliness was found to be worse for one's health than regular use of tobacco and alcohol. Dr. Waldinger summarized, taking care of your body is important, by tending to your relationship is a form of self-care too. That I think is the revelation. तो आज के टाइम में भी हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो ट्रबलसम 2 ही चीजें हैं समाज में, या तो वो लोगों में डिप्रेशन है या फिर वो नशा है, किसी न किसी नशे में डूबे हैं. ठीक है, वो लोनली हैं लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उनको भरना है अपने आप को नशे से. ठीक है. या फिर मोबाइल Researchers से. from the Harvard study of adult development always ask participants this question: who could you call in the middle of the night if you were sick or scared? The responses range from a long list of names to nobody, and served as a simple measure of an important metric. आप रात के 12 बजे भी किसी को कॉल करें, क्या कोई आपकी लिस्ट में कोई ऐसा आदमी है? हाँ, मुझे कॉल कर सकते हो आप कभी भी.
Dr. Wellington commenting on those who had answered, nobody said, that's the real loneliness. उन्होंने कहा किसी को भी नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा आपका अकेलापन है. This sense that nobody in the world has my back, मेरे पीछे कोई नहीं है. ये सेंस हो ना कि कोई भी मेरी केयर करने वाला नहीं है या मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है. The costs of that are huge. It makes us feel unloved and unsafe and eventually breaks down our health. यही जी. चीजें हमारी सबसे ज्यादा हेल्थ को परेशान कर रही है कि हम जब देखते हैं कि भी पूरी दुनिया से तो हम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, बट अगर हम एक आदमी की ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा. फोन डायरी पूरी भरी है हमारी लोगों से, बट कॉल नहीं कर सकते किसी को भी टाइम पे. हम्म. हमारे यहाँ ना बहुत सारे ऐसे मेरे रिलेशन में लोग मुझे कॉल कर लेते हैं. वो कहते हैं भैया आपको ही कॉल कर सकते हैं हम बस, कभी भी. चलिए, हो गया. तो हर एक अपना सर्कल है, कैसा बनाता ही है जिसे वो कॉल कर सके. जी. तो होना भी चाहिए. किसी को इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ भी किसी के मन में आ रहा है? इवन एनी सॉन्ग, एनी मूवी, एनी बुक, एनी एग्जाम्पल. वही इस गाना अच्छा है ना भाई भरी जी, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के. दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में. बस. जी. मुझे भी याद आ गया, उपकार में था ना. हम्म. कौन सा? एक सेकंड भी, थोड़ा सा मुझे एक मजे भी बड़ा अच्छा याद आ गया. आ गया भाई जी. रिश्ते नाते प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है टूटे, वादे हैं वादों का क्या, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बात है, बातों का क्या. थैंक यू. एक्सीलेंट. मुझे याद आया, मैं गाऊंगा तो नहीं ऑब्वियसली. नहीं गा दीजिए कोई ऐसा, यहाँ पे हम थोड़ी नहीं, ना. वो मैं गा भी नहीं पाऊंगा. वो तो वैसे वाला बहुत फास्ट सॉन्ग है ये. खून भरी मांग मूवी का है ये. आप में से अच्छा. किसने देखी है? जी बाजी देखिए मैंने. रेखा जी हैं इसमें हाँ, एक्टर. कबीर बेदी. कबीर बेदी, यस. इसमें एक गाना है, जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना तुझको आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो सकता है पर तूने किसी को अपनाया ही नहीं. बहुत ही बहुत पावरफुल सॉन्ग है, बहुत इंस्पिरेशनल है, हाई वो पूरा एनर्जी. हो सकता है पर तूने किसी को चाहा अपना. नहीं है क्या? अपनाया, अपनाया नहीं. अपनाया नहीं. ओके. और बाकी स्टेंजा भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है. तो खासतौर से कोचेज, ट्रेनर्स, सभी को ये सुनना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए प्लेलिस्ट में. सर एक सर आप इससे क्लोज द विंडो से कैसे बात कर सकते हो? मैं वही सोच रही हूँ तब से. क्लोज विंडो. सर क्लोज ये. विंडो मोबाइल. सर हम भूल ही जाते हैं उसको. अल्पना जी, थैंक नहीं नहीं, यू वो नहीं, फॉर मुझे हाथ में फॉर लेना रिमाइंडर. पड़ता है मोबाइल. हम्म. ये कल्पना जी का वो आस्क रहता है ना. हेलो. नहीं, ये तो बहुत थैंक यू स्नेहा जी. तो एक बहुत प्यारा सॉन्ग है राहुल भाई, जी. मैं चाहूंगा कि उसको एक बार गाऊं 1 मिनट के लिए. हाँ हाँ. घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. मेरे को एक्चुअली जब मैं कभी कभी सड़क पे नहीं जाता हूँ ना, तो ये जो भी बच्चे घूमते रहते हैं ना सलम, या इनकी सेल्फी ले लेता हूँ मैं ऐसे ही इनके साथ, या ये इनके मतलब कुछ
खा पी लेता हूँ। मेरे को इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग लगती है। इवन आप अच्छा। देखो ना कि मतलब हम सबका ये इतना इंट्रिंसिक नेचर है कि हमें ट्रू हैप्पीनेस मिलती है, वो जब मिलती है जब हम सेल्फलेसली किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करें जिससे हमें कभी हेल्प मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात वो है भाई। करके देखें कभी तो उससे हम्म, लगता है हाँ कुछ, मतलब अपनी नज़रों में हम ऊंचे उठ जाते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया। तो हम्म, इसका मतलब हमारा बेसिक नेचर वही है, देना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा समझा है कि लोग ज्यादातर उनकी हेल्प करते हैं, पहली कैलकुलेशंस लगा लेते हैं कि चलो आज हम हेल्प कर रहे हैं तो कल मतलब कुछ हमें फायदा होगा। बट मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि मुझे उन लोगों की हेल्प करने में बहुत मजा आया। मतलब जहाँ पे मुझे पता था कि मतलब मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बोल रहा हूँ कि वो आना नहीं है, कुछ भी मुझे पता है कभी नहीं आना वो। हम्म। मैंने कहा और इनका ये फेज है, ये भी निकल जाएगा। बट जिनके साथ जो बॉन्डिंग बनेगी, इनको कम से कम ये याद आएगा कि उस समय पे तो कोई खड़ा था। तो इनका वो बिलीफ सिस्टम नहीं बनेगा समाज में ना, कि कोई नहीं है हमारे साथ कभी। हम्म। अगर थोड़ी सी भी हमारा एक अप्रोच उनको बिलीफ सिस्टम नहीं बनने देती इसमें कि। ये बहुत है ना, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं इस बात में। इसमें एक लेयर तो ये है कि हमने कुछ सेल्फलेसली किया, इसमें भी किया वाली बात तो आई गई। एक इसमें हम्म, लेयर ये भी है कि आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम द सोसाइटी, और मेरे पास हाँ उसका एक तरह से कर्ज है, मैं बस वो उल्टा चुका रहा हूँ, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ। हाँ, ये और भी एक स्टेप आगे है। जैसे अभी हम ये सेशन कर रहे हैं, इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आहा मैं तो बड़ा उपकार कर रहा हूँ, रीडिंग सेशन हम चला रहे हैं, है ना। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये जी हो जी सकता है जी। कि नहीं नहीं, ऑलरेडी इतना सब कुछ उपकार हमारे ऊपर हो गया है, लोगों ने हमें इतना भरपूर कर हाँ दिया, वी आर जस्ट गिविंग बैक, रिटर्निंग, रिटर्न कर रहे हैं बस। तो वो दोनों ही एक तरीके होते हैं। इसके ऊपर एक ना एग्जाम्पल है मेरे पास ना। एक बार हम कार में जा रहे थे, तो हमारी गुड़िया छोटी थी, तो उसको ना नीचे उतारा बाथरूम वगैरह के लिए। तो उसके नए जूते जो है वो नीचे ही छूट गए। तो फिर हम चल दिए कार में, तो मेरी वाइफ ने कहा भाई ये तो जूते तो उसके रह ही गए पीछे। तो मेरे मन में ये भाव आया, नहीं नहीं, वो हो सकता है कि किसी और को जरूरत हो, उसके काम आ जाएंगे वो, हम तो और ले लेंगे। या कभी कभी हमारे पैसे गिर जाते हैं ना हम्म। सड़क पे, तो हम क्या सोचते हैं, नुकसान हो गया। तो मैं उसको ऐसे नहीं सोचता, मैं ऐसे सोचता हूँ वो शायद बाबा ने या गॉड ने कुछ ऐसा हम्म। करा है कि किसी और को जरूरत है उसकी अभी, जी। हम तो कर नहीं। तो हमारे आज के चैप्टर में भी टू छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम दोनों पार्ट्स कल करें, या एक पार्ट आज करें, या दोनों पार्ट आज करें। तो कितना कितना टाइम देख सभी लीजिए के पास जैसा है, उस आपको पर लगे। डिपेंड करता है। एक पार्ट तो कर सकते हैं वैसे अगर टाइम है सर तो। इफ यू रिमेम्बर लास्ट ईयर आपने हम लोगों को लिखाया था एक चीज कि हाउ टू डिजाइन योर लाइफ। तो मैंने अपना डेथ डिजाइन किया था, तो आपने बोला था आपने तो अपना डेथ ही डिजाइन कर लिया। तो इसमें मैंने कहा हम था फिर से हाँ। करेंगे वो सारी चीज़ें। और वो ये जो फर्स्ट इसका जो हेडिंग था ना, इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट डिजाइन, यू नो, who is going to be in the front row of you when you are dying, यस। when you are dead. So इसके लिए जो बेस मटेरियल एक हम यूज़ करेंगे वो है, मतलब बाकी सबके लिए भी रिकमेंडेशन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी। तो उसकी कल उनकी आपने बोला था। बायोग्राफी से बहुत सारी कुछ चीज़ें तैयार की हैं हमने। तो वो काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाएगा, कभी हमने वो यूज़ किया भी नहीं अभी तक। बहुत हम्म, अच्छा कंटेंट है उसमें, मतलब एक वो वैसे है लियोनार्डो दा विंसी की तरह, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब मल्टीपल master, पर्सन्स इन वन। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा है उनका। he did a lot of things. अच्छा आपने जो पोस्ट किया उसको सुना, बहुत हम्म। सुंदर है, बहुत सारा कुछ, कितना कुछ किया उन्होंने, हम्म। कितना कुछ, बाप रे। तो उनका जीवन एक रियली बहुत नीड टू बेर। मतलब फर्स्ट मैन ऑफ अमेरिका माना जाता है, फाउंडर ऑफ अमेरिका माना जाता है उन्हें, कितनी बड़ी बात है। और एक इतना संतुलित इतना डिसिप्लिन जीवन जिया उस व्यक्ति ने। सोचो टाइम ब्लॉकिंग करता था वो इतने 100 साल पहले, वो बंदा बंदा। टाइम ब्लॉकिंग तो लोग आजकल नहीं जानते अच्छे से, वो तब टाइम ब्लॉकिंग करते थे। तो काफ़ी अच्छी बड़ी सीखने वाली बात है। सर ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, टर्मिनोलॉजीज हमको पता नहीं था सर, हम बहुत कुछ यूज करते थे।
पहले भी, लेकिन हमको उसका टर्मिनोलॉजी पता नहीं था, इसलिए हम लोग उसको क्या टर्म से बुलाएंगे वो नहीं कर सकते, ऐसे ही कर लेते थे। अच्छा, ये इसीलिए हैबिट बना लो, ये आदत बना लो, ऐसा था। इसलिए हमारा पहर वाला कॉन्सेप्ट है ना, 2 पहर 4 पहर। नहीं, ये सही कह रही है अल्पना जी, तो वैसे बहुत ये सारी हमारी टाइम चीजें। ब्लॉकिंग थी जी। अल्पना जी भी बहुत आपने ठीक कहा, बहुत सारी चीजें हम करते थे। जैसे मैं पढ़ाई में ना निमोनिक्स यूज करता था पहले से ही, एक्रोनिम्स यूज करता था पढ़ाई में मैं, अपने आप ही, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई चीज है। बट अभी मतलब जब अब आगे पता चल रही भी चीजें होती हैं, लोग तो करते हैं ऐसे भी। यस, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम TKS तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ऑफिशियली भी कंसोलिडेट कर रही है कि हमारी हजारों साल की क्या विजडम है जो इधर उधर स्कैटर्ड है, कैसे उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए प्रॉपर। तो इसमें काफ़ी सारे IITs वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, तो उसकी वो लाइब्रेरी वगैरह बनाते रहते हैं। बाकी अपने ग्रंथ वगैरह तो इतने भरे हैं वो सारे। जैसे आजकल डॉक्टरों के साथ हम पढ़ते हैं पतंजलि योग सूत्र, तो उसमें तो कितनी सारी विजडम की बातें भरी हुई हैं, सारी बातें हम कनेक्ट कर सकते हैं आज की बातों से। तो बहुत ये कुछ ऐसा किसका है। रेफरेंस आप बता रहे हैं? पतंजलि योग सूत्र, हम्म। तो काफ़ी कुछ ऐसा है। सर, ठीक है, इसका कुछ बुक है पतंजलि योग सूत्र का, तो फॉरवर्ड कीजिए ना सर। बहुत सारी बुक्स हैं। आप इंटरनेट पे कहीं भी टाइप करो, गामा में टाइप करो, कुछ भी करो, ChatGPT में करो, आप पूछिए दिया जाएगा। आस्क एंड इट विल बी गिवन। ग्रॉक ग्रॉक पे करो। ग्रुप पे करो, हम्म। कहाँ का बहुत चीज़ें हैं। मैं आजकल ग्रोक पे कुछ कुछ चीजें देख रहा हूँ, काफी चीजें निकाल के देता है वो, हम्म। कुछ ज्यादा ही निकाल के देता है। हाँ, वो फैक्ट चेकिंग के लिए भी अच्छा है, रियलिटी चेक के लिए अच्छा है। हम्म। बड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा इम्पार्शियल है। और कभी कभी अपने को ढूंढना बड़ा अच्छा लगता है उस पे। मान लो अपने का नाम, अपना नाम डालिए, हम्म। तो वो देखो क्या क्या डिटेल देता है उसमें। काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है AI में, लेकिन लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं उसका। यस। तो ठीक है जी, तो कर। एक बार राहुल भाई, जितने भी लोग आ जाए इनका इंट्रोडक्शन तो कराइए। मेरी जनरली एक हैबिट होती है मैं सबको जानने की। अच्छा बताइए, आप किस किस को जानते हो? मैं वैशाली जी को जानता हूँ, अल्पना जी को जानता हूँ, और कौन है, जस्ट मिनट, स्नेहा ओ जी को भाई। नहीं जानता हूँ, ओम नारायण जी को नहीं जानता हूँ, और हम ही लोग हैं बस आज तो। हम्म। तो डॉक्टर ओम हैं झारखंड से। ओम, अच्छा जस्ट मिनट, ओम नारायण जी, हाँ हाँ। ओके। हाँ, 3 लोग, ओम नारायण जी को और स्नेहा जी को हाँ, हम जानते और स्नेहा जी हैं बेंगलोर से। हैं। ओके। और हम सब में कॉमन बात है, वो तो आपको पता ही है। वो तो मेन मेन वो है, हमारा कोर है अंदर वो तो। अंदर से या बाहर से वाइट वाइट है हम सब। जी 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 जी। तो इन सब एंड आउट। वाइट वाइट है। बाकी इन सब एंड अलग अलग आउट सिटी वाइट से हैं, वाइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब अलग अलग जगह से हैं। वाइट इन वाइट आउट। हाँ, तो वेस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं वैशाली जी, साउथ को कर जी। रही हैं स्नेहा जी, अरे नॉर्थ वाह। को कर रहे हैं हम दोनों, और ईस्ट को कर रही हैं अल्पना जी। जी जी जी। तो पूरे चारों दिशाएं हैं। तो सोचो जूम तो का आपने भी। ओम नारायण जी के बारे में बताया, क्या डॉक्टर है? आयु। जी डॉक्टर, हम बताइए अपने बारे में थोड़ा और कुछ। मैं झारखंड से हूँ जी और सर। अनेस्थीसिया का प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे। एनेस्थीसिया। जी जी। ओके, मतलब एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं आप, लोगों जी को जी। एनेस्थेसिस ऑपरेशन से कहा पहले जाता है। सुलाते हैं तो। ये फिर ओटी में बैठ के किताबें पढ़ते हैं किंडल पर। बहुत जोक्स रिस्पॉन्सिबल अपार्ट, पोजीशन होती है बाबा, यस ये यस, एनेस्थेसिस का ही इज बहुत डूइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्क, पोजीशन। बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉक्टर हूँ। मतलब मेरे लिए इंस्पायरिंग है कि वो कितना सारा, तो मैं सोचता हूँ जितना काम वो कर रहे हैं उतना मैं तो कर लूँ और ये एट द थैंक यू सेम सर। टाइम। और एक एज ए फार्मर भी काम करता हूँ। फार्मर सर। ऑर्गेनिक जी जी। फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके गुड। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत शौक है, रीडिंग का बहुत शौक है। मतलब आप किसी बुक रीडिंग का का नाम तो, ले तो जो दो। आपके ग्रुप में है वो रीडिंग वाले तो वहीं पक्का। गुड हम्म। रीड्स। हाँ,
ये तो एक कॉमन फैक्टर ये भी है, आप कॉमन कह रहे और थे ना, ये भी। बहुत ही इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ माइंडसेट है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। मतलब एआई की बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, सीख रहे हैं। और अच्छा। किसी चीज़ पे तो कभी मैं बोल भी दूंगा कि ठीक है इसका तो क्या यूज़ होगा, लेकिन डॉक्टर कहेंगे नहीं नहीं ये मैं को करना ही है। तो वो करते हैं और सेल्फ इनिशिएटिव लेके बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है। मैंने देखा था भी, आपने फर्स्ट आज ही देखा मैंने, 1 अप्रैल को आपने कोई एआई के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन किया है? हाँ हाँ, एक मास्टर क्लास थी इम्पोर्टेंट। अच्छा। ओके। उसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भेज सकते हैं क्या? उसकी रिकॉर्डिंग एक्चुअली वो यूट्यूब पर डाल ही नहीं सकते, वो कॉपीराइट मटेरियल है। अच्छा। मतलब हमने डालने की कोशिश भी करी, लेकिन वो इतना हाईली कॉपीराइट मटेरियल है कि डालते ही वो रिमूव्ड आ जाता है वहाँ से यूट्यूब से। नहीं, मतलब कुछ आप पर्सनल, वी कांट इवन कुछ आपने अपलोड। रिकॉर्डिंग पर्सनल लेवल पे भेज सकते हैं विदाउट एनी, मतलब? वो मतलब सेफ नहीं है भेजना कहीं भी। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि वो लोगों ने ऐसे ही परचेज किया होता है, तो वो जी कहीं जी। शेयर कर नहीं सकते उस तरह से, उसमें कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं उन्होंने। ओके। बहुत चीज़ों पे नहीं भी होता है, लेकिन उस पर उन्होंने पता नहीं क्या ही सिस्टम लगाया है। तो भाई मैं नहीं चाहता मेरा चैनल डिलीट हो जाए, पहले हो चुके हैं बहुत सारे। काफ़ी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, चीज़ें आ चुकी हैं। फिर तो आप रहने दीजिए उसे। हाँ। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज होते हैं ना, वो लोग स्मार्ट होते हैं, दे स्मार्ट इनफ जी जी। टू प्रोटेक्ट देयर कंटेंट। लेकिन ओके। हाँ, जूम पे मैं दिखा पाया समहाउ। ओके। वरना वरना कुछ चीज़ तो इतनी प्रोटेक्टेड होती है कि आप जूम पे भी नहीं दिखा सकते। आपको पता है, मैं नेटफ्लिक्स अगर मैं चला के किसी को जूम पे दिखाना चाहूँ तो दिखा नहीं सकता। हम्म। ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है पूरी। अच्छा। यू कांट इवन रिकॉर्ड। जैसे मैंने कई बार क्या सोचा कि मुझे कहीं इंपॉर्टेंट डायलॉग मिला, जैसे मुझे लगा मैं एनएलपी की क्लास में सुनाऊंगा, ये अच्छा लगा मेरे को, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। हम्म। मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है वो मटेरियल नेटफ्लिक्स वगैरह का कि आप सिस्टम के सॉफ्टवेयर से भी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जूम पे भी नहीं कर सकते। आप एनएलपी की क्लास भी लेते हो अभी, राहुल भाई? हाँ जी, काफ़ी कुछ। अच्छा। वही तो उनका मेन फोटे है सर। अभी अभी 2-4 महीने और रुक जाइए। काफ़ी कुछ चल रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द प्रोसेस। जी जी जी। सर तो एनएलपी ज्यादा करते हैं, सि, सिखाना। नीरज भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे। हाँ। थैंक यू सर। मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है वो क्रोमेटोग्राफी का है। जी। क्रोमेटोग्राफी। और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नेटिव प्लेस तो सहारनपुर है, उसके पास एक टाउन है, बट आई रिजाइड इन नोएडा सर, नोएडा एक्सटेंशन। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि अभी कुछ दिन पहले राहुल भाई आए थे, मिले हम लोग। क्रोमेटोग्राफी, अभी ये नया वाला वर्ड मिला। थैंक यू। मैं भी वही सोच रही थी कि क्या है क्रोमेटोग्राफी, सुना सुना लग रहा है बट जी जी व्हाट जी। एग्जैक्टली इट इज नहीं पता। एग्जैक्टली वही थोड़ा सा सीख, मतलब इसको चलिए, निकालना है क्या है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली इसका अगर आप लिटरली मीनिंग जाओगे तो क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमा यानी कलर, कलर के बेस पे जब हम अलग अलग चीजों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो इसका बेसिक मीनिंग मीनिंग है। जैसे आप इंद्रधनुष भी देखते हो ना, वो भी एक क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है। बट साइंस में इसका बहुत बड़ा यूज है, स्पेशली इन फार्मा। जो फार्मा इंडस्ट्री में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट होते हैं, वो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। मतलब एक टेक्निक है ये, जिसके थ्रू आप जो मेडिसिन होती हैं, जो आपको मिल जाती है आसानी से, ये इसका बनना इतना आसान नहीं है। इसके अंदर टॉक्सिसिटी और इनटॉक्सिसिटी सब देखनी पड़ती है कि मतलब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, इसका प्योरिटी लेवल चेक करना है पूरा। वो सब क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ही होता है। बड़ा फील्ड है, आप एक बार ट्राई गूगल करेंगे तो पता चलेगा आपको। हाँ, मतलब वैसे नीरज भाई का बेसिकली फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी से ये क्रोमेटोग्राफी ही है, इज वैसे एनालिटिकल मास्टर्स इन एनालिटिकल बायोटेक। केमिस्ट्री। जी सर जी जी। कन्वालेसिंग का जो अभी आज सीखा हमने, उसका थोड़ा देख लीजिए ग्रुप में क्या पोस्ट किया, ठीक है या नहीं, अच्छा, देख लीजिए कौन विद से वाले बेंच। ग्रुप में किया? हमारे एआई ग्रुप में। ओके। ग्रुप कोचिंग ग्रुप में देख लीजिए। ओके, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, थैंक यू सर। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एग्जैक्टली।
परफेक्ट। थैंक यू सर। आपने सर्च तो करके गवर्नमेंट क्या होगा ना, बनाया तो नहीं? नहीं बनाया सर उसको। बनाया है? हाँ सर। अरे वाह, हाँ क्या बात उसको है, अभी उसको बैठ कर बनाया, वो चैट जीपीटी से बनाया, कमाल गामा है। से नहीं। आप मोबाइल से इतना कुछ अच्छा कर रहे हो, लैपटॉप होता तो दुनिया हिला के रख देते आप। तो ये हमारा प्रोफेशनल फील्ड है क्रोमेटोग्राफी, बट उसके अलावा छोटे छोटे काम करता रहता हूँ मैं। जैसे रामलीला में मैंने राम जी का रोल किया है 5 साल। और ये अच्छा है। जी, और स्टेज प्रोग्राम हाँ, कुछ बहुत भी। अच्छे एंकर हैं अपनी सोसाइटी में, फेमस है बहुत। हाँ, वो मेरे को शौक है। वो मतलब ऐसी चीजें हैं जो अपने आप ही हो जाती हैं, उनके लिए तैयारी भी नहीं करनी पड़ती कुछ। और इसलिए इनकी कुछ सोशल भी वेल्थ हम शौक सबसे होता ज्यादा है। है। हाँ, सोशल वर्क मतलब सोशल सोशल वेल्थ। वेल्थ। रिसेंटली हमने डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का एक प्रोग्राम कराया यहाँ पे ऑडिटोरियम में, बहुत अच्छा हुआ वो, अभी पिछले साल। तो ये है। अब कौन रह गए? स्नेहा जी रह गए बताने के लिए। हाँ जी। तो जी। ऐसे तो मैं राजस्थान से हूँ, और अल्पना जी के सिटी में भी एक्चुअली मैं वहां पे रही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। तो ओके। अभी बैंगलोर में हूँ, एंड आई एम वर्किंग इन एचआर फील्ड अभी 15 साल से। लोगों को एनालाइज करते हैं आप। बैंगलोर कहाँ रहते हैं आप स्नेहा जी? बताती हूँ मैं बैंगलोर। आपको। ओके। माय सन इज इन इंदिरा नगर। ओके, वहां मेरा ऑफिस है। दैट्स अ कमर्शियल एरिया बट और राजस्थान में आप कहाँ से? ये तो मुझे पहली बार पता चला। नहीं पता है आपको? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ। ध्यान नहीं दिया शायद कभी। चूरू। अच्छा। चूरू। अच्छा। शुरू का तो नाम वैसे टेम्परेचर की वजह से आता रहता है ना न्यूज में, हाँ हाँ, शायद बहुत कोल्डेस्ट कम। वहां होता है। राहुल भाई, मैंने एक चीज देखी है। जनरली मैं जब भी आता हूँ तो मेरा तो ये नेचर होता है कि एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो। लेकिन ये सबसे सरप्राइजिंग है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप ये कहते हैं कि उनके बारे में पहली बार पता चला है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, एक बार आपको रिमेम्बर होगा। हाँ, तो काफी सारी बातें होती है, पर कुछ बातें कभी निकल के नहीं कुछ आती। रह गया। जैसे हाँ, मेरे को सही बात। कोलकाता वाली तो एंगल पता था, कोलकाता वाला, हाँ बेंगलोर जी, वाला हाँ तो जी, पता ही है। हाँ जी। तो उन्होंने पहली बार ही शायद बताया, या मैंने पहली बार सुना है, मैं भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। राहुल भाई की एक खास बात है, सबको जोड़ लेते हैं अपने मधुर व्यवहार से। और रीडिंग एक तो कॉमन है ही सबके बीच में, एक तो रीडिंग। है ही, दूसरा है रीडिंग। रीडिंग, हाँ, 2 कॉमन फैक्टर है आज के लिए ना। जी। जैसे एक एचसीएफ और एक एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एक होता है एलसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मैथ एलसीएम। में। हाँ। नहीं, एलसीएम होता है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ, एचसीएफ। हम्म। तो ये एक बिग तो फैक्टर हमारा है ही, जो आपको पता है। एक और एक सेकंड फैक्टर भी है जुड़ने का। जी। ठीक है जी, कल मिलते हैं, सेम टाइम। सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी सर। कोई बात नहीं, परसों आइए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है थैंक यू जी। सर। ओके। ओके, बाय।